Yeah. Yes. So here, what means oxygen is left with 6 electrons, and the phosphorus has already completed its octet. So what will this phosphorus do? This will just share this pair of electrons with oxygen, and in this way this compound is formed. Okay. Yes, sir. Yes, या sir. मीन्स इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, मेरे को पक्का विश्वास है। अच्छा पहले ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ सॉरी पी का वैल्यू क्या आया था? सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया मतलब इतने से मैं क्या गलती से 2 निकाल दिया था पी का वैल्यू। अच्छा अभी क्या आ रहा है? 0। ओके ओके ओके। सो आदेश आपने बनाया था ऐसा ही फोटो? मैंने SO3 का बनाया था। अच्छा POCl3 नहीं बनाए थे आप? नो सर, अभी मैंने सोचा आप SO3 पूछ रहे हो। ओके ओके ओके। सो जस्ट मेक द फिगर ऑफ SOCl2 and SO2Cl2. Believe me, this is your real study. In classes, you are just solving questions. This is your real study time. Means, can you try to draw the figure intuitively? Means without just finding P and that all things. Can you just try to draw? Yes, Believe sir. me, you can draw very easily. Am I correct? Yes, sir. Yeah. So means I am not calculating P and anything. I am just drawing the figure intuitively. Okay. By tomorrow, I sir. will be able to pronounce this word. Okay. Today I'm just Sir, I yeah. have to. So Sir, can you for just yeah? sir for SOCl2 one more oxygen will be there. Yeah. You are correct. There will be one more oxygen here, and this is SO2Cl2. Yeah. So can you guys please quickly find the value of P for these compounds? 0. Yeah. इसकी तो 0 है। हाँ दोनों का 0 होगा। सो इसमें जैसे फर्स्ट का 0 है तो सेकंड का 0 मैं कैसे बता सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ एटम एक बढ़ गया, मतलब 6, और उधर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 6 से बढ़ गया, तो माइनस माइनस कट जाएगा, खत्म। Got Yes, that? sir. Yeah. Okay, so just draw HClO and keep in mind that in oxoacid, hydrogen is always connected with oxygen. Do you guys remember क्या that बोला था point? आपने? अरे मैंने बोला था कि ऑक्जो एसिड में नहीं सर वो कंपाउंड। अच्छा कंपाउंड HOCl, फिर से लिखनी है HOCl2, फिर से HOCl3, ऐसा ही ना है कुछ, देखता हूँ। यस सर। या एंड HOCl4 तक जाएगा ये। सो जस्ट क्विकली draw the figure and yeah, just message me on WhatsApp on that. Hello. SCLO HOCl, HClO, there is no any difference in writing this. Okay, you can write down HClO also, no problem.
Okay, you should message on the new number from which I sent you the link today. Okay. Just I Yes, want sir. to see that how you guys are drawing. Yeah, HClO4. Okay, sorry. Okay, done. Just let me erase this. Absolutely correct. This is Tanisha, I guess. Oh, Archie. Yeah, absolutely correct. I guess HOCl4 is not possible. Yes, sir. Yeah. Yeah, this is correct. So what is the structure of HClO? You have to keep in mind only that in oxoacid, hydrogen is always connected with oxygen. तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा? Now you tell me, what will be the central atom? So Cl. No, oxygen. Oh. Why? This is because of the fact that hydrogen is connected with oxygen. Okay, so this is oxygen, this will be hydrogen. Okay, and this is chlorine. So if oxygen is going to share one electron with hydrogen, then obviously it will need another atom for sharing one electron. Okay, so this will be just like this. मैं बताता हूँ क्या बात क्या है यहाँ पे. बात यहाँ पे ये है कि अगर जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमेशा ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होगा. अगर ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर कर लिया तो ऑक्सीजन के पास अब हो गए 7 इलेक्ट्रॉन. तो अब ये किसी से ले भी नहीं सकता है, मतलब कि कोई भी डोनर इसको डोनेट नहीं कर सकता है डबल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डबल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके पास 9 हो जाएंगे. देन अब ऑक्सीजन के पास एक ही चारा बचा हुआ है कि अब ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही कर सकता है. डू यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. Sir, repeat. या देखिए, OH जो है ना, जनरली OH को ऐसे जब भी आपको ऑक्सो एसिड मिले तो उसमें बस ऐसे OH समझ लीजिएगा, ठीक है. अब OH को क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये किसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसका काम हो जाएगा. देन इन दिस कंपाउंड, दिस इज OH and there is a chlorine, so it will just share one electrons with chlorine to complete its octet, and chlorine will also complete its octet, so it is stable. Okay, in this way you can also understand. And in other way, see here, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो 7 हो गए तो अब ऑक्सीजन एक ही काम कर सकता है कि क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे और अपना 8 कर ले. एंड इन दिस वे क्लोरीन का भी 8 पूरा हो जा रहा है और ऑक्सीजन का भी 8 पूरा हो जा रहा है. समझ में आया? Yes, sir. तो HClO ऐसे बना.
नाउ टेल मी HOCl2 कैसे बनेगा? तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन तो इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, ये तो पक्का बात है क्योंकि ये ऑक्सो एसिड है। नाउ हियर सी, एक इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन के साथ शेयर कर देगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लोरीन के साथ ये क्या करेगा? एक मिनट, इसका 8 कंप्लीट है, इसके पास 7 है, देन हाउ कैन इट बी पॉसिबल? हेलो, वेट, ऑक्सीजन क्लोरीन को दे कैसे सकता है? क्लोरीन नीड जस्ट 1 and here oxygen is just giving it 2 electrons. Let me see here. सर क्लोरीन तो ऑक्टेट बढ़ सकता है ना, डी ब्लॉक है एक बार उसके पास खाली। Oh, actually the question is wrong. I am so sorry. क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ही गलत है। This can't be possible. Do you know why? बिकॉज ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर शेयर कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के पास तो ऑलरेडी 7 है, तो 7 है तो ये 9 हो जाएगा ना, देन इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली द कंपाउंड्स व्हिच आई टोल्ड यू आर रॉन्ग। एट द प्लेस ऑफ ऑक्सीजन आई टोल्ड यू क्लोरीन, सो इट इज नॉट, इट इज HClO2, okay, and HClO3, okay, HClO4. This will be the compounds. Now solve it. देखिए बनाते हुए समझ में आया कि सवाल ही गलत था। नो प्रॉब्लम, वी लर्नड, एक चीज सीखे। तो इसे क्या सीखे जी गलत सवाल से? कौन बताएगा? एनीवन? कॉन्सेप्ट वही सोच नहीं। अच्छा, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे? हम लोग से ये कॉन्सेप्ट सीखे कि कभी भी किसी के पास जैसे कि देखिए ये क्लोरीन है, तो कोई भी डोनर क्लोरीन को 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकता है। द रीजन इज दैट क्लोरीन के पास 7 है, तो क्लोरीन एक ही एक्सेप्ट कर सकता है, एक से अधिक एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंड इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग डोनेटेड, सो देयर कांट बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच देयर इज ए एटम which donates its electrons to chlorine. Do you get my point? So क्लोरीन के पास एक ही ऑप्शन है कि भाई शेयर कर लो। ओके, यस सर। ओके, एंड फॉर दैट रीजन ओनली द प्रीवियस क्वेश्चन वाज रॉन्ग। सर या सर अगर पी की वैल्यू 6 या 7 आएगी तो क्या होगा? कहाँ आ रहा है? पॉसिबल है सर, ऐसे आ जाए मतलब किसी में ऐसे एज्यूम 5 आ जाए। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? वो जो रूल बनाया होगा मतलब वो पगला थोड़ी ना होगा। मतलब जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करता होगा उसको मतलब सभी में कुछ स्टडी करके ही वो रूल बनाया गया होगा। बिकॉज दैट्स नॉट मीन्स आवर रूल, हम लोगों ने उसको नहीं दिया है, कोई अच्छा चचा ने उसको दिया है, ठीक है ना? यस सर। हाँ, so it can't be possible. बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। बट या मेरे को नहीं लगता है कोई ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें पी का वैल्यू कुछ और आ जाए, मतलब 7-8 का जो भी। या नाउ योर आंसर इज करेक्ट आर्ची। सर या सर जैसे जो लुईस स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उस हिसाब से तो जो पहले के कंपाउंड्स थे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, बट सर वैसे तो हो सकता है ना, क्योंकि जो क्लोरीन है वो एक्सेप्ट तो कर ही सकता है, जरूरी नहीं क्योंकि उसके क्यों पास अपना एक्सेप्ट? एक डी ऑर्बिटल खाली होगा। अरे अरे, नाउ यू आर मूविंग ऑन फिजिकल केमिस्ट्री। ओके ओके, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि मतलब 8 से, जिससे कोई आदमी अगर 8 में खुश है तो क्यों वो 9 लेना चाहेगा बिना मतलब का?
नहीं ऑन सर, अभी स्टेबिलिटी के जैसे लिए। फिलहाल तो नहीं बना है हम्म इसमें, जैसे इस हिसाब से तो गलत हो गया लुईस स्ट्रक्चर्स के हिसाब से। हम्म। सर बट कंपाउंड तो हो सकता है ना? If it is possible, then we will see later. But I don't ओके think सर, so. ओके सर। हाँ, आगे जाने पे लुईस स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा गलत होगा। वी विल सी देयर कि देयर आर हाइपर एटॉमिक एंड हाइपर इलेक्ट्रॉनिक एंड हाइपो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। तो हाइपर वाला में क्या होता है कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल में। तो जैसे 12 हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, तो वहां पे लुईस वाला फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। सो इन दैट केस इट माइट बी ऑक्टेट पॉसिबल। सर आगे ऑक्टेट रूल भी फेल कर जाएगा। हम्म। ओके, सो हो गया सबका। हेलो। यस यस सर। सर। डन। यस सर। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप लोगों से बन नहीं रहा है? मतलब लेट मी जस्ट ड्रॉ इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज ट्राई एटलीस्ट। गलत सही जो भी लगे, कम से कम बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाले में तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होगा, तो ये तो पक्का है। तो O एंड देयर इज वन H, एंड नाउ दिस ऑक्सीजन नीड ओनली वन इलेक्ट्रॉन एंड इट शेयर्स विथ क्लोरीन। सो यहाँ पे इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी और इसका भी। ओके, डन। सो इन दिस कंपाउंड कैन यू प्लीज टेल मी द सेंट्रल एटम? क्लोरीन। HClO2. Yeah, chlorine is going to be the central atom. So the chlorine is central atom, and now one oxygen will be connected with one hydrogen. So here one oxygen and this is one hydrogen. Okay, now you can see that octet of this oxygen is also complete, octet of this hydrogen is also complete, and octet of this chlorine is also complete. So the fourth oxygen will be left with 6 electrons only. Then in this case, this chlorine will donate both of its electron to this oxygen. Okay, so there will be यस सर। one coordinate bond, and in this compound what will happen, that one more oxygen will come here and it will be with 6 electrons only. Then this chlorine has another pair of electron and it will donate it to this oxygen, and in this case there will be another oxygen and there will be another pair of electrons in chlorine and it will donate it to this oxygen, and in this way all of these will be formed. So यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा था, थोड़ा बताइए आदेश। सर यहाँ पे अच्छा। जैसे आपने क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया हम्म सर, ऑक्सीजन, और हम्म। यहीं पे आ रही थी सर दिक्कत, मतलब क्यों? क्या करेंगे आगे, क्या करेंगे? अच्छा, क्या कर सकते हैं आप ही बताओ ना। जैसे यहाँ पे एक OH के साथ एक Cl कंप्लीट हो गया, अब देखो Cl का ऑक्टेट कंप्लीट है। ओके, एंड Cl ही सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम ही डोनेट करता है, तो यहाँ पे क्लोरीन ही डोनेट कर सकता है। एंड नाउ ऑक्सीजन इज कमिंग, अब इस ऑक्सीजन को कौन डोनेट कर सकता है, तो क्लोरीन, एंड हेंस क्लोरीन इज डोनेटिंग वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्मिंग। सो नाउ यू आर गेटिंग इट or not? यस सर। Okay, यस सर। so Tanisha, are you fine with this? सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। ओके। देखो जैसे आज हम लोग शुरू में ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे बात कर रहे थे, तो उसमें सबसे पहला ही पॉइंट था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब बनता है, जब एक डोनर हो और एक एक्सेप्टर हो। तो एक्सेप्टर वो होता है जिसके पास अब कोई भी शेयर करने के लिए कोई और है ही नहीं, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, तो अगर एक ऑक्सीजन है ऐसे ही छोड़ दिए इसको, तो इसको और कोई शेयर करने वाला है नहीं। लेकिन इसके बगल में अगर कोई एक ऐसा आ जाए जिसके पास एक लोन पेयर हो, ठीक है, मान लो एक कोई मेटल आ जाए, चाहे जो भी आ जाए, उसके पास अगर एक लोन पेयर है, ठीक है ना, और इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, तो ये क्या करेगा ना कि अपने ये दोनों लोन पेयर को, ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा।
ताकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और ये फुल्ली डोनेट नहीं करता है, यहाँ पे डोनेशन एज वेल एज शेयरिंग होता है। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए HClO2 था, अच्छा छोड़िए HClO था यहाँ, अब एक और ऑक्सीजन आया, तो ये जब ऑक्सीजन आया तो इसके साथ शेयर करने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सबको देखिए, बाकी सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। देन अब यहाँ पे ये सर्च करेगा कि किसके पास लोन पेयर है। सो हियर सेंट्रल एटम इज क्लोरीन एंड ऑलवेज सेंट्रल एटम विल बी डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर क्लोरीन का क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके पास लोन पेयर भी है, और ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन कहेगा अच्छा भाई तुम मेरे 2 इलेक्ट्रॉन को ले लो, एंड दिस क्लोरीन विल डोनेट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन टू दिस ऑक्सीजन, एंड इन दिस वे अगर एक और ऑक्सीजन आ गया तो इसके पास एक और लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस लोन पेयर को भी इस ऑक्सीजन को दे देगा। नाउ आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यहीं पे गलती हो रही थी। अब सही है Yes. ना? अब समझ में आ गया? यस ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। या सो कैन यू बिलीव दैट आप लोग बहुत ही अच्छा अच्छा चीज पढ़ चुके हैं, and now only little things are left. So here write down a heading. अच्छा, ये सभी आपने अपने नोट्स में लिख लिया है ना? हेलो, नहीं सर। अभी नहीं लिखा। तो इसको लिख लीजिए। अब कब लिखिएगा? एटलीस्ट आई थिंक कि SOCl2 तक तो आपने लिख लिया होगा। यहाँ तक लिख लिए। आर्ची? नहीं लिखा सर, बाद में लिख लेंगे। ओके ओके, सो राइट डाउन अनदर टॉपिक, ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। डन? यस सर। या सो राइट डाउन 3, एक है H3PO2, इसको हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। H3PO4 सॉरी H3PO2, इसको हम लोग हाइपोफॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। देन H3PO3, इसको हम लोग फॉस्फोरस एसिड बोलते हैं। एंड H3PO4, इसको हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं। सो जस्ट राइट डाउन। अब इसका स्ट्रक्चर ना आप लोग बनाओगे, देखो कितना आसानी से बनेगा। एक मैं बताऊंगा एंड रेस्ट ऑफ ऑल आप लोग खुद से बना लोगे, इतना आसान है। सो डन? ये चीज लिख लिए ना आप लोग? यस सर। या अच्छा लिख रहे हैं अभी। ओके ओके ओके। सर हम्म, सर यस। फॉस्फोरस बोलने कैसे पता चलता है? क्या क्या? फिर से सर फिर से। फॉस्फोरस या फॉस्फोरिक बोलना है कैसे पता चलता है? अच्छा अच्छा, मतलब फॉस्फोरस एसिड बोलना है या फिर फॉस्फोरिक एसिड बोलना है? यस सर। ये तो मतलब आई डोंट नो कि ऐसा कोई सिचुएशन होता होगा जहाँ पे ऐसा बोला जाता होगा। But yeah, if you have asked the question, then I will just find out today, and I will just share it in group. Okay? So मैं इसको नोट कर लेता हूँ। या मतलब एक अच्छा सा सॉलिड से आंसर देना बहुत जरूरी है। देन
ऐसा सही रहेगा, ठीक है ना। और तो मैं बता दूंगा इसको, बट या यू शुड रिमेम्बर द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। मतलब H3PO2 को हम लोग हाइपोफॉस्फोरस बोलते हैं, H3PO3 को हम लोग फॉस्फोरस बोलते हैं, एंड H3PO4 को हम लोग फॉस्फोरिक बोलते हैं। या इन द सेम वे H3SO3 H2SO3 इसको हम लोग सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, एंड H2SO4 इसको हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। डू यू रिमेम्बर द नेम्स? हेलो, Yes, sir. Yes. या ओके ओके। सो मतलब इसको तो लिखिए मत, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर बनाना है। चलिए तो हम लोग पहले H3PO2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा। तो ये एक ऑक्जो एसिड है, और ऑक्जो एसिड में हाइड्रोजन इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ ऑक्सीजन। ओके, इफ ऑक्सीजन इज मतलब अगर ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ ही कनेक्टेड होगा। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये है फॉस्फोरस, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा बताइए? Phosphorus. या Phosphorus. फॉस्फोरस। तो इसके आउटर मोस्ट में होगा 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5। ओके, सो हियर यू कैन सी दैट देयर आर 3 हाइड्रोजन बट ओनली 2 ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, एक O के साथ एक H, और फिर से एक O के साथ एक H। Now it's done. Now the third hydrogen will be searching for oxygen, but there is no oxygen, so that will go with phosphorus. So here phosphorus के साथ ये bond बना लेगा। समझ में आया? Yes, sir. Yeah, but this is wrong. Do you know? Yes, sir. Yeah, why? Can you please tell me? Basically, in all the oxo acid of phosphorus, always remember this point. I am just doing mistakes so that you can remember the things. कि सर ने ऐसा गलती किया था तो ऐसा मैं ना करूं। ओके, फॉर दैट थिंग ओनली आई एम राइटिंग दिस। तो ये वाला केस में प्रॉब्लम क्या था, सबसे पहले तो हम लोग इस बात पे बात करते हैं, देन देयर आफ्टर वी विल जस्ट टॉक अबाउट अदर थिंग्स। तो जो भी फॉस्फोरस का जो ऑक्सो एसिड होता है ना, उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलवेज होता है, और वो होता है फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में। ये मतलब ऐसा है कि इसको याद ही कर जाइए कि फॉस्फोरस का जो भी ऑक्सो एसिड है उसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जरूर होगा, एंड अदर थिंग्स विल गो इन द सेम वे। जैसे एक ऑक्सीजन रिजर्व हो गया, एंड द नेक्स्ट ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन जो बचेगा वो फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड हियर मींस अब H3PO3 में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एंड अब 2 ऑक्सीजन बचा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन ऐसे ऐसे, एंड एक हाइड्रोजन बचा हुआ है जो डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। एंड H3PO3 में क्या होगा कि एक ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, एंड बाकी 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचे हुए, तो देन यहाँ पे OH, फिर से OH, फिर से OH। ओके, सो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, हेलो, Yes, sir. या यहाँ पे मतलब कुछ अजीब ही सा रूल है। मतलब मतलब आज तक मैं ये भी नहीं समझ पाया कि मतलब ऐसा क्यों होता है। बेसिकली होना वो चाहिए था जो हम लोग पहले सोचते थे कि जैसे ऑक्सो एसिड में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होता है, उस केस में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे एक जैसे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑलवेज होता ही है फॉस्फोरस से ऑक्सीजन के बीच में, OH OH एंड देन हियर H। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये सही होना चाहिए था H3PO2 के लिए, but unfortunately this is not true, and the reason for this you will find in just coming pages, that why this is happening when you will see जब हम लोग हीटिंग इफेक्ट पढ़ेंगे एसिड्स का, तो अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों होता है। सो जस्ट या सर इसमें सर फास्फोरस की कोवैलेंसी तो 5 होती है ना,
तो सर वो तो हो नहीं रही है। अच्छा अच्छा, तो अगर फास्फोरस सिंगल बॉन्ड बनाएगा तब ना, यहाँ पे फास्फोरस क्या कर रहा है कि ये इसको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे रहा है। ओके। यस सर। हाँ, या नॉर्मली कोवेलेंसी ऑफ द सेकेंड ग्रुप में जो होते हैं उनका कोवेलेंसी 5। वेट वेट वेट, भाई भाई, असल बात है 2 साल हो गया पढ़े हुए, ठीक है ना। सो आई मे बी फॉरगेटिंग सम ऑफ द थिंग्स। जैसे मैं जब पढ़ता हूँ तो मेरे को याद आता है। तो अभी कोवेलेंसी पे कोई भी मतलब अभी कमेंट नहीं करूंगा। जस्ट यू हैव टू वेट। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बट देयर इज नो एनी अदर वे। Have you drawn the figures? Basically, let me tell you one thing. मतलब एक सही बात बताता हूँ मैं. I am just teaching you not because I am a great teacher, but I am just teaching you because आप लोग को मेरा notes पढ़ने में थोड़ा आसानी हो. The only reason for teaching you is that you should be able to read my notes comfortably. And means any teacher जो भी आपको inorganic पढ़ाते हैं, he is far better than me. Do you know the reason? The reason is perfect that I am not reading any books of inorganic chemistry, but your teachers who are just teaching you in the coaching institutes, they are reading a lot of books for gaining any concept. So मतलब मेरे को जो concept मेरे समय पे clear हुआ था, just I can make that concepts clear with you guys. And जो भी मैं नहीं जानूंगा वो मैं बोल दूंगा कि मैं नहीं जानता हूँ. Okay, time will come then I will tell you that. And yeah, this is the real truth. Okay, just write down a note. Write down a note. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Means are you guys fine with this? मतलब ऐसा हो सकता है कि बहुत चीजें मेरे को नहीं आए because I am not that much qualified or experienced. So means please forgive me for that thing. Yeah, but I am that much able that I can make you understand the topics. मतलब समझा सकता हूँ, कहीं कहीं फंस सकता हूँ, ये भी पॉसिबल है. Okay, just write down a note. If oxoacid of phosphorus contain pH bond, then it acts as a reducing agent. If oxoacid of phosphorus contain pH bond, then it acts as a reducing agent because of both have almost same electronegativity. आपको याद है फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम था? Yes, sir. Yeah. So for that reason only, if oxoacid of phosphorus contain pH bond, then it will act as a reducing agent. So pH bond क्या होता है? फास्फोरस और हाइड्रोजन. Yes, sir. हाँ, अगर फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, then it will act as a reducing agent. Here you can see that in H3PO2 there is only one OH, so it's called as monoprotic acid. Monoprotic acid means it can donate only one of hydrogen. एक ही H प्लस ये निकाल सकता है, वो भी कौन सा, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है. तो इसको हम लोग मोनोप्रोटिक एसिड बोलते हैं. और ऐसा फिगर बना के लिख लीजिएगा कि रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू 2 pH बॉन्ड. H3PO3 जो है, सॉरी PO2 जो है, वो रिड्यूसिंग एजेंट है बिकॉज ऑफ 2 pH बॉन्ड. एंड H3PO3 जो है उसमें, उसको हम लोग डाइप्रोटिक एसिड बोलेंगे. डाइप्रोटिक वाई? बिकॉज देयर आर 2 OH बॉन्ड एंड इट कैन रिलीज 2 हाइड्रोजन, 2H प्लस. एंड ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा
ड्यू टू 1 pH बॉन्ड। बट H3PO4 हम लोग देखेंगे तो ये ट्राइप्रोटिक एसिड है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता है। ओके यस सर। हाँ, तो अब आ गए हम लोग कोवेलेंसी पे। तो लिखिए कॉन्सेप्ट सिडविक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी। Sidgwick is the name of a chacha, scientist chacha, and he gave a rule for maximum covalency. So for second period, the maximum covalency is 4. And for third period, the maximum covalency is 6. So means Chandan was talking about that phosphorus had means covalency of 5. But do you know, Chandan, phosphorus can have covalency of 6 in PF6 minus. Yes, sir. Okay. Yeah. So means there is a foundation on the top. Means what can have it maximum? It may be it may have a lower covalency than expected. Means it may have 4, it may have 3, it may have 2 also. If you here you can see that you can say that chlorine have maximum covalency of 6, but here you can see that it has only 1 covalency. So it may have a covalency lower than what you expect. Okay, Yes, there is a sir. limit Yes. on the maximum covalency that it can have. The maximum covalency that third period elements can have is 6, and the maximum covalency that second period elements can have is 4. Okay, so write down that second group, second period के हम लोग elements का नाम लिखेंगे, जैसे BeF4 minus, फिर से BeF4 2 minus, Ba4 minus, CH4 NH4 plus. They please join again. Time is over.